Hello, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. Thank you for being a part of our journey. We are with our very special celebrity and guest, a person who has inspired several young women across the world, inspired me as well. She's a wonderful lady. Join us, friends, to welcome Advocate Meeta Banerjee. She's joining us all the way from Kolkata, West Bengal, India. Let's get to know about her achievements and celebrate her life. And let us take her as a role model. Let us also stand up for the rights of human beings and animals as well. She's a wonderful person connected with the world and the universe in a very appropriate way. Hello, ma'am, and welcome to the session, dear. Thank you. Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you so much. With your permission, I go ahead and share your profile and then we start the session, dear. Surely. Thank you so much. Friends, it's always a privilege, as you all know, to share the profile of our celebrities and guests. Today, we have Advocate Meeta with us. She is here. Let's get to know about her profile as to how she became an advocate, how she entered into the field of law, and what is her contribution to the Indian society and the world at large. Friends, ma'am, that is Advocate Meeta Banerjee. She is a Padma Shri nominee 2024. That is this year. She's already won 35 national awards and she's a wonderful G20 speaker, concentrating on bringing about a social change. She represented India at the United Nations General Assembly twice. She's an advocate and social activist. I'd like to go further ahead and share she is one of the prominent Indian lawyers and activists known for her unwavering dedication, focusing on the principles of justice, equality, human rights, animal rights, etc. She's completed her education, that is with a bachelor's in political science, and then pursued LLB in 2009. Her journey is that one filled with lots of impressive wins, lots of impressive situations where she won in many cases. She has been dealing with over 100 cases till date, ranging from rape, child abuse, forgery, divorce, corporate crimes, etc., just to name a few. Her commitment to provide legal aid, especially to the underprivileged in Naxalite areas in Bastar, showcases her belief in the protection of human rights and the power of law to rectify injustice. A legal career and achievements, she's very passionate when connected with her clients, especially before the Honorable High Court of Calcutta, various tribunals, district and session courts, and as well criminal courts. Her relentless pursuit of justice has earned her a recognition in prestige of, the work that she does. Now let's get to know more about her. See, when you meet people like this, you start thinking like, how could one woman achieve so much? If Meeta ma'am could do it, you and I also could do our best to make this world a beautiful place. And imagine that she has achieved so many awards and she's one of the wonderful people connected to the United Nations as well, to the G20 summit, all of that. Let's get to know more about it. Hello, ma'am, and welcome to the session. There's still so much to share about you, but I cut it short to get all the information from you, and let's celebrate your journey on the International Fab Talks. How would you define yourself, dear? Yes, dear. How would you define yourself? I'm just a girl of next door. Very much like you and any other person. I have ambition. Uh, from my childhood, I have an ambition to become an advocate. My role model is my father. Uh, he's a political person and he's also a social activist. His journey influenced me a lot. My husband is also a very influential person. He's a criminal lawyer, and of course, he's my senior too. He's inspired me. I believe that if any woman achieve anything, just because she have a supportive father and husband, because without having a supportive father and a supportive husband, a woman in country like India can't achieve anything. So you need to be a daughter of a good father and wife of a good husband. The person in our daily life who we are encountered, they also be a role model of us. And after all those things, your passion towards your God, whomever you believe, in which name you call him, you have full dedication upon him. So the success will come to you automatically. It's all about hard work, and hard work. Excellent, ma'am. That's wonderful. I like the way you put it. In India,
if you would love to be really an independent woman and to be a woman of substance, definitely you need either a good father, a wonderful No, brother. we need both the good father and a good husband. Yes, We yes, need to have a daughter of a good father, and we need to have a wife of a supportive husband. Thereafter, we became in self-independent, motivated, and successful woman. yes. That's wonderful. That's really wonderful, ma'am, to have a supporting father, supportive partner, a wonderful brother, and of course, our colleagues, all of us. And of course, the colleagues whom we work in Yes, our day-to-day life, more in my field, more of the time they are male, and they always encourage their well-behaved and good character female colleague sisters. They are also encourage us. They are stand beside us to think that she is my colleague sister, she is my friend. So we also, this is a world with two species, a male and a female. So we always need the help of our male colleagues, friend, brothers, and they also need us as their sister, as their friend, or whatever you say. yes, dear. Yes, ma'am. You're very right, ma'am. You're absolutely right. Dear ma'am, now I'd like to ask you, being an advocate in a male-dominated society like India, what are the challenges that you face? Many challenges I face, and very surprisingly, those challenges are come from my female colleagues, Oh, not not the male one. Actually, we lived in a profession where nepotism has taken their control full-fledgedly. Likewise, in advocacy field, one is to call you that your father is an advocate. Do you belong to advocate fraternity or a family? So, what is actually happened in this field? Only one thing is concerned, that if you are capable enough or not. It's no matter that your father is an advocate or you belong to the second generation advocate. Clients need relief from us. Clients have no problem that my father is advocate or not, my husband is advocate or not. But what is actually going on when a girl comes from a background with a law family, and suddenly she see a outsider come into the field, and she have a very good brief, she have a client trust. So what is going on? She can't able to handle this. So in very initial days of my career, one of the lady belonged to my library. I am not going to take his name. Actually, she is not so famous. If I take his name, no one can recognize her. Her father was judge. So she tell me, why the solicitor firm and inquire about you. Don't bring your coat and your brief on the library. So I asked her, though, does this library belongs to your father? Actually, this is the challenge we all are faced. We all are faced because always I believe that the group of a bad people always in a unity, they are very united. Bad peoples are always united, and the we good peoples, we are in a number, we are shattered, we are not in united form. So what happening, those bad people are affecting our careers. They are trying to destroy us. I face many hassle, but by the grace of Sri Hari Vishnu, I have no problem. Today I am sitting just next to you and talking about my career. yes, that's wonderful, मैम. बहुत सही आपने कहा. बुरे लोग जो है हमारे बुराई करते रहते, इसीलिए हमारे पीछे ही रहते हैं वो लोग. और हम जो अच्छा काम करते हैं वो हमें आगे ना, लेके बुरे आते हैं. लोग हमेशा झुंड में रहते हैं. जी, वो हमेशा यूनाइटेड रहते हैं. जी, जी, वो अकेले नहीं रहते हैं. जी, और जो हम अच्छे लोग होते हैं, हम लोग अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करते हैं, हम लोग साथ में नहीं रहते हैं. जी. तो क्या होता है, जो बुरे लोग हैं वो एक जगह को अपना वर्क ऑफ एरिया बना लेते हैं. वहां पे वो घुसने नहीं देते अच्छे लोगों को, और क्योंकि हम अलग है, हम घुस भी नहीं पाते. जी, 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 मैम.
That's really nice to know that there are supportive male colleagues than female ones. ये हर एक प्रोफेशन में देखा गया, फीमेल कोलिग्स थोड़े से उन लोगों को थोड़ा सा जलन रहता है या थोड़ा सा वो एक फीलिंग रहता कि भाई आगे ना कोई बढ़े हमसे, वो है। हाँ है। यस मैम। डियर मैम, अभी हम ये बात करेंगे, आप इस लाइन क्यों चुने? आप इतने सारे लाइंस थे, यू कुड डॉक्टर भी बन सकते थे, टीचर बन सकते थे, या कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते थे। एक्चुअली मैं आप डॉक्टर ही बन सकती थी। जी मेरा जॉइंट में मुझे चांस मिला था। मेरा ऐसे भी साइकोथेरेपी में डिप्लोमा है, जी तो मैं डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद पिछले जन्म में, आई बिलीव इन रीबर्थ, शायद मैं अपने पिछले जन्म में भी एडवोकेट ही रही होंगी और शायद कोर्ट में ही मेरा जान गया होगा, क्योंकि मैं एकदम बचपन से, आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, मैं अपने पापा का कोट पहन के बोलती थी कि योर ऑनर। पता नहीं कहाँ से मुझे ये बात सीखने को मिला था, मेरी माँ भी बोलते, मैं बोलती थी योर ऑनर। तो मैं बहुत क्लियर थी कि मैं बनूंगी तो एडवोकेट ही बनूंगी, नहीं तो मैं आइडियल हाउसवाइफ बनूंगी। मतलब बीच में कोई और प्रोफेशन नहीं था, मैं कुछ और नहीं बनती, मैं बनती तो यही बनती। मैं मानती हूँ जो डॉक्टर है वो एक बीमार शरीर का इलाज करते हैं, और हम जो एडवोकेट हैं हम एक बीमार समाज का इलाज करते हैं। वाह, तो यही मेरा मानना है। बढ़िया है। मैं बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि भाई डॉक्टर का काम क्या है और एक लॉयर और एक एडवोकेट सच्चे लॉयर का का। काम क्या है। जी 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 जी। जी मैम। मैम, अभी हम थोड़ा सा आपके केसेस के बारे में बात करेंगे। अभी चाइल्ड अब्यूज के केसेस आते हैं और रेप केसेस भी आते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी केस है आपको दिखा? इज इट द रेप केस और द चाइल्ड अब्यूज केस, और इज इट द कॉर्पोरेट केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस? ज्यादा से ज्यादा वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ पर है? चाइल्ड अब्यूज में है, क्योंकि जो विक्टिम है उनको पता ही नहीं है कि वो विक्टिम है, उनके साथ क्या हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चाइल्ड अब्यूज़ के केस में होता है, क्योंकि उनके जो फैमिली होता है वो उन्हें रोकते हैं कि ये बोलो मत, और जो उनके गुनहगार होते हैं वो उनके सामने होते हैं, और उस चीज़ को लेके उन्हें बड़ा होना होता है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनके बात को सब मान तो रहे हैं, लेकिन उनके लड़ाई में कोई उनके साथ नहीं है। मेरे पास एक चाइल्ड अब्यूज़ का केस आया था। ये मैं आपके थ्रू से बोलना चाहूँगी कि ये मत सोचिए कि चाइल्ड अब्यूज़ सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, ये लड़कों के साथ भी होता है। एक बच्चा आया था मेरे पास, 9 साल उम्र था उनका, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ। उनकी माँ लेके आई थी, माँ हाई स्कूल की टीचर थी, डिवोर्स थी। अपने बच्चे को घर में रख के, मायके में रख के अपना वो स्कूल जाती थी, और उनके बच्चे के साथ वो जो औरत थी, मतलब जिसको देखभाल के लिए रखा गया था, मेड, वो और उनके जो अपने भाई थे, वो दोनों मिलके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक 9 साल के बच्चे के साथ उसको स्टूपेफाइन ऑब्जेक्ट खिला के, कभी आइसक्रीम में, कभी कोल्ड ड्रिंक में। एक दिन कुछ ऐसा खिला दिए थे कि वो बच्चा पॉइजनिंग हो गया था, शायद मर जाता। उसका माँ ले जाके उसको ट्रीटमेंट कराई तो तब पता चला। वो बच्चा रात रात भर उठ के बैठ रहता था। मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ीस वो बच्चा ने दिया था मुझे। एक दिन रात 2 बजे उसके माँ ने मुझे फ़ोन किया, करके बोला कि मीता सॉरी, मैं उनकी माँ को दीदी बोलती थी, वो मुझे नाम से ही बुलाती थी, कि मीता सॉरी इतना रात को फ़ोन कर रहे हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहा कि मैंने पूछा अपना बेटे का नाम बोल के कि वो बैठ रहा था बार-बार उठ के, मैंने कहा तुम सो क्यों रहे हो? तो वो बच्चा बोला कि माँ, अगर मैं मर जाऊँ तो मामा बच जाएँगे, तो उनको कौन सज़ा दिलाएगा? तो उसकी माँ ने कहा मैं सज़ा दिलाऊँगी। फिर से बच्चा सो गया, 2 मिनट बाद फिर के उठ के बैठ गया। बैठ के बोल रहा है कि अगर तुम भी मर गई तो क्या होगा? तब उसकी माँ चुप हो गई और बच्चा 1 मिनट में कहा कि मीता आंटी सज़ा दिलाएगी। तो मेरे ज़िंदगी का सबसे हाईएस्ट फ़ीस मुझे वो 9 साल का बच्चा ने दिया था, जिसको ये यकीन था कि वो रहे ना रहे, उसकी माँ ना रहे, मुझे फ़ीस देने वाला कोई ना रहे, फिर भी उसका होके मैं लड़ूँगी। इससे बड़ा फ़ीस कोई नहीं दे सकता है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपने आज हमारे आंखें खोल दी। आपने कहा सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों को भी ऐसा उनका हाँ, शिकार होता है। यस डियर। हुँ, यस लड़कों के साथ। यस डियर। तो जो पेरेंट्स है बाहर, जो यंग पेरेंट्स है, तो यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन, स्टे सेफ, ऑब्जर्व व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर चिल्ड्रंस लाइव्स। बिलीव इन योर चिल्ड्रंस। यस। अगर जब आपके बच्चे किसी के पास जाना नहीं चाह रहे हैं,
तो उस आदमी के बारे में, उसके डिमीनियर के बारे में इंक्वायरी कीजिए। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा किसी के पास जाना चाह रहा है, तब भी उनके बारे में बहुत अच्छी तरह के इंक्वायर कीजिए। क्योंकि ये जो फीलिंग्स ऑफ सेक्स होता है, वो बड़े होने के बाद हम में नहीं आते हैं। हम इंडियन इसके बारे में बात नहीं करते, ये बहुत गलत है। एक इंसान जब पैदा होता है, तब वो सेक्स, सर्वाइवल और एग्रेशन के साथ ही बड़ा होता है। वो जब दुनिया में आता है, तो जिसे हम ईट कहते हैं, सेक्स, सर्वाइवल एंड एग्रेशन, ये 3 चीज़ लेके वो दुनिया में आता है। उसके बाद क्या होता है कि हम जब जितने बड़े होते हैं, सोसाइटी के कनेक्शन में आते हैं, दोस्तों के कनेक्शन में आते हैं, तब हम अपने वो जो इंस्टिंक्ट है उनको हम हाइड करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बच्चा है तो उसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बच्चा बहुत छोटा रहता है तो वो अपना उंगली चूसता है, क्योंकि उसका सेंस ऑफ सेक्स उस वक्त उसके होठों में होता है। उसके बाद वो अपना पॉटी जो है उसको होल्ड करता है, तो वो एनल फेज होता है, वहाँ पे रहता है। तो ये फीलिंग्स रहता है। एक छोटा सा बच्चा एक बड़े से इंसान का छोटा सा एडिशन है। उसके पास उसका सारे जितने फीलिंग्स हमारे हैं उनके भी हैं। तो उन पे भरोसा कीजिए, जो यंग पेरेंट्स हैं उन पे भरोसा कीजिए और उसका इंक्वायर कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि भरोसा करके संग संग स्टेप लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि बच्चे का एक अपना ही इमेजिनेटरी वर्ल्ड रहता है। नाउअडेज वो लोग मोबाइल देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ हमारे मोबाइल में पॉपअप करता है, बोलने पे ही आप यकीन मत कीजिए। लेकिन हाँ, उनको उसको जांचिए ज़रूर, परखिए ज़रूर कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। अपने बच्चे को गुड टच, बैड टच के बारे में सिखाइए। उनका जो प्राइवेट पार्ट्स है, जो माएँ हैं, ज़रूर देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग है, उनके बॉडी पे कहीं कोई निशान है, कुछ ऐसा है जिससे आपको शक हो रहा है। उनका बिहेवियर चेंज है, वो सपने देख रहे हैं, उठ के बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक बच्चा को क्लोज ऑब्जर्वेशन का बहुत ज़रूरत होता है। तो ये ज़रूर करिए यंग पेरेंट्स जो है। एडवोकेट मीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा एक माँ या पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे संभालना है और अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना है बच्चों में गुड टच और बैड टच के बारे में। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर टॉकिंग सो बोल्डली ऑन द प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर थॉट्स एंड व्यूज एंड योर एक्सपीरियंसेस। मैम, अभी हम ये बात करना चाहेंगे एक औरत के बारे में। हम मर्दों के बारे में भी बात करेंगे कि मर्द लोग भी कैसे सफर करते हैं एक शादी में। फर्स्ट वी टॉक अबाउट वुमेन। अक्सर देखा गया, जो भारतीय नारी है ज्यादा सह लेती है जो हम्म। कुछ भी हो रहा है घर में, डाउरी से लेके अल्कोहलिक पार्टनर जो है उनका जो स्वभाव है, डिस्टरबेंस जो फैमिली में होती है, ये सब कुछ सह लेती है और वो शादी छोड़ के नहीं जाती। समाज क्या कहता है या मेरे बच्चे, ये दो चीजों का डर से वो वहीं पर रहती है, सब कुछ सहती रहती है। एंड अंत में नुकसान उस माँ का और उनके बच्चों का होता है। तो इसके बारे में ऐसे केसेस बहुत सारे आए होंगे आपके पास। इसके बारे में क्या सुझाव है या क्या सलाह देना चाहते हैं? पहला तो मैं एक बात बताऊंगी, एक औरत के साथ पहला जो नाइंसाफी है वो उसके मायके से होता है। जी, बिल्कुल, वेरी क्योंकि करेक्ट। जो मैं बताना चाहूंगी आपको, जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में थी, मैं अपनी कॉलेज की 3 साल की प्रेसिडेंट थी। मेरे पापा ने समाज पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और मुझे रात के 10 बजे तक जनरल बॉडी का मीटिंग करने दिया। तो क्योंकि उनको समाज से ज़्यादा अपनी बेटी पे भरोसा था। मेरी माँ को इस बात का यकीन था, मेरी माँ ने मुझे हमेशा कहा है कि मुझे डिवोर्सी बेटी चलेगा, लेकिन मुझे मुर्दा बेटी नहीं चलेगा। और ऐसे भी माएँ हैं जो बोलेंगी कि अगर वो इतनी अच्छी होती, तो वो अपने ससुराल में मर जाती। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको अपना शादीशुदा बेटी चाहिए, भले ही वो मुर्दा हो। तो जो लड़कियों के साथ जो पहला आपका अन्याय होता है, वो उनका मायके से होता है। उनको एजुकेटेड किए बिना, उनको अपना ज़िंदगी, अपना उड़ान भरने देने से पहले उसको शादी करवा दिया जाता है। लड़कियों को ये सोचवा दिया जाता है कि तुम्हारा शादी ही तुम्हारा अल्टीमेटम है। लड़की का सपना होता है शादी करना, उनका सपना ये नहीं होता है कि अपने पैर पे खड़ा होना। जैसे मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, मुझे पैसा का लोभ नहीं है, लेकिन मुझे नाम का बहुत लोभ है। और शायद ये नाम का लोभ ही वो चीज़ है जो आपको अपने पैर पे खड़ा होना और स्वाभिमानी बनना सिखाएगा।
एक लड़की जब शादी करके किसी के घर जाती है तो वहाँ पे उसे मतलब मैंने देखा है बहुत जगह पे कि लड़कियां अपने माँ बाप से बोल रही है मुझे ये गहना दीजिए, मुझे ये दीजिए, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। तो ये सोचना चाहिए कि लड़की क्या तुम एक गहने से लदी हुई बुत हो? तुम एक जीती जागती इंसान हो, तुम्हारा सोच, तुम्हारा वजूद है। सिर्फ कोई गहना, कोई हीरा, कोई जवाहरात तुम्हें डिफाइन नहीं कर सकता है। पर हाँ, तुम्हारा एजुकेशन तुम्हें डिफाइन कर सकता है, तुम्हारा काम तुम्हें डिफाइन कर सकता है। तुम्हें डिफाइन तब कर सकता है जो तुम्हारे जो एरिया है वहाँ के भिखारी तुम्हारे लिए क्या बोल रहे हैं, वहाँ के जो स्ट्रीट एनिमल है वो तुम्हें देख के कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। पर हम लोग ये सब नहीं करते हैं। हम लोग एक औरत को उसके स्कर्ट के लेंथ से, उसके क्लीवेज दिखना या नहीं दिखने से, या उसका पति कितना पैसे वाला है इससे जज करते हैं। तो ये सब जजमेंट में वो औरत कहीं खो जाती है। वो इंसान जो एक जेंडर नहीं है, एक जीती जागती सत्या है, वो खो जाती है। मेरा जान पहचान में मेरी एक क्लाइंट है, उन्हें मैं दीदी बुलाती हूँ। 26 साल का शादी है उनका और उनका वेट है 39 केजीज। उनका पति उन्हें खाने नहीं देता है, किसी तरह से उनका चलता है। तो वो मेरे पास आई 26 साल के बाद, अपनी मैरिड लाइफ में 26 साल सफ़र करने के बाद वो औरत मेरे पास आई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको सीधा जज के सामने खड़ा कर दिया और बोला कि इनका जो वेट है वो है आपका 39 केजीज। उनको कैंसर नहीं है, वो एक स्वस्थ इंसान है, खाने के अभाव से ये है। देखिए लॉ आपके साथ है। उसी दिन जज ने ऑर्डर दिया कि इनका घर ना बिकना चाहिए, इनके घर इनका रहना चाहिए, इनको खाना मिलना चाहिए। हम औरतों को नहीं, हम मर्द को किसी भी इंसान को, जो वो जिस भी देश में रहता है उस देश का कानून जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये नॉलेज ऑफ लॉ, ये लीगल अवेयरनेस आपको कैपेबल बनाएगा कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें, आप अपने समाज को बचाएं और आप एक अन्याय होने से रोकें। क्योंकि अन्याय करने से ज़्यादा अन्याय सहने वाला बड़ा गुनहगार होता है। औरतों को बहुत प्रॉब्लम है, डाउरी डेथ चलता है आज भी, सिर्फ टेक्निक बदल चुके हैं, लेकिन है। एक लड़की का शादी था जनवरी 22 को और 9 जनवरी को वो लड़का उसको एक नोटिस देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। लेकिन उससे पहले वो लड़का 25 दिसंबर तक उस लड़की के साथ सहवास करता है और वो बोलता है शादी नहीं करूँगा। हमारे जो फील्ड है यहाँ पे भी बहुत डाइसी पीपल्स है। ये जो क्लाइंट के बारे में बोल रही हूँ, वो लड़की पहला दिन मेरे पास नहीं आई थी, वो किसी और एडवोकेट के पास गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस रेप केस में उस लड़के को 3 दिन में बेल करवा दिया, वो ब्राइव्ड हो गए थे। अब 3 दिन के बाद वो लड़की मेरे पास आई, जब उसको पता चला कि वो बर्बाद हो चुकी है, अब वो नहीं बच सकते, वो लड़का छूट चुका है। तब हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाके उसका बेल अब तक हमने कंफर्म नहीं होने दिया। अभी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट कलकत्ता में वो केस जो है वो चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि मेरे क्लाइंट को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपको सोचना चाहिए ये जो हुआ ये क्यों हुआ। ये एक लड़की जो खुद बहुत पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वो कैसे इस झांसे में आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि हमारा जो माइंड सेटअप है समाज का, जो हमारे माँ हैं ज़्यादातर उनके लिए शादी बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी इम्पोर्टेंट है अगर सही आदमी आपके सामने है तो। अगर सही आदमी आपके सामने नहीं है तो वो एक शादी एक बुलशिट है, उसे तोड़ देना चाहिए और निकल आना चाहिए। जी मैम, जी मैम, आपकी बातें सुन के अच्छा लग रहा है कि भाई आप जैसे लोग हैं इस समाज में जो सच्चाई के लिए या इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। दैट्स वंडरफुल, रियली वेरी नाइस। मैम अभी एक बड़ी बात है, थोड़े फैमिलीज ऐसे हैं, हमने देखा है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो घर का जो हेड है, जो फादर है, तो वो शराबी है, अल्कोहलिक है। तो हर दिन शराब पी के आके घर में डिस्टरबेंस कर देता है, बच्चों को हम्म। डराता है और बीवी को मारपीट या गाली गलौज, मारपीट तो नहीं, कम से कम इमोशनल टॉर्चर तो कर देते हैं। ऐसा हर दिन डिस्टरबेंस ड्यू टू अल्कोहल।
तो ऐसे बहुत सारे भारतीय नारी फेस कर रही हैं ये इशू। इट कुड बी फ्रॉम एनी क्लास, अपर क्लास, एनी क्लास। एनी क्लास। तो इसके लिए कुछ सुझाव है या कोई सोल्यूशन है मैम? इसका सबसे अच्छा सुझाव ये है कि टोटल जो लीगली इन लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो जाएगी। एक औरत को इमोशनली टॉर्चर करना भी उतना ही खतरनाक है जितना उनको फिजिकली टॉर्चर करना है। अगर कोई आदमी रात को शराब पी के आपको पीट रहा है तो आपको पूरा हक है कि आप सुबह उसको गिरफ्तार करवा दीजिए, उनके ऑफिस में जाइए, नोटिस कीजिए, उनका तनख्वाह से 50% ले लीजिए, क्योंकि जब तक पैसा रहेगा तब तक ये चीज़ रहेगा। शराब के अगेंस्ट में सबको मिल के हमें लड़ना है। किसी एक घर का तो प्रॉब्लम है नहीं, कई कई जगह पे बहुत सारे घर का है, और एक ऐसा चीज़ है कि इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक आदमी जो शराबी है वो शराबी ही रहेगा, वो अपना ज़िंदगी के लास्ट दिन तक शराबी रहेगा। आप कर क्या सकते हो, आप उनसे उनका पैसा छीन सकते हो, कि पैसा नहीं रहेगा तो कोई उनको फ्री में शराब नहीं पिलाएगा। और जो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे में भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डेवलप होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। तो जितना हो सके माँ को चाहिए कि उस वक्त उस आदमी से बात ना करें, उनको काउंसलिंग के लिए ले जाए, और अपने बच्चों के सामने अपने पिता का वो छवि आने ना दे। लीगल रिसॉर्ट है, लेकिन हर चीज़ को आप लीगल से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको उसी आदमी के साथ रहना है। क्योंकि औरतें जो हैं हमारे समाज के, आज भी ज़्यादातर औरतें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, वो पैसा नहीं कमाती हैं, और ये पैसा नहीं कमाना अपने आप में अत्याचार का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक बात बहुत कॉमन है कि मेरा ही खाते हो, मेरा ही पीते हो, मुझसे ही बात कर रहे हो। लेकिन अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट होगी तो उनके लिए ये बात नहीं होगा कि मेरा खाते हो, मेरा पढ़ते हो, मुझ पे ही बात करते हो। तो ये हमारा चॉइस है। हर कोई पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। मैं मानती हूँ कि हर इंसान को कुछ ना कुछ दे के ही भेजा गया है। अगर कोई बहुत अच्छा पढ़ाई में है तो बहुत अच्छा कोई गाना गाता है, कोई बहुत अच्छा सिलाई करता है, किसी को बहुत अच्छा घर का खाना बनाना आता है, घर संभालना आता है। तो हम में से हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, हम लोग उसको लेके आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। जी जी हम्म, जी मैम। मैम अभी हमने देखा है भाई बहनों में लड़ाई, हम्म, वो प्रॉपर्टी को लेकर। तो कोई एक ना एक भाई या बहन हम्म, प्रॉपर्टी पूरा हड़प लेते हैं और बांटते नहीं है। तो ऐसे केस में, और लड़ाई इस बात पर भी होता है, where the parent, they are half brothers and sisters, वो एक हम्म, माँ या बाप से, I mean they are different, the father or mother is either different and they हम्म, are staying together। फिर बाद में पता चलता है कि भाई प्रॉपर्टी के मामले में, हाँ आप हमारे खून के नहीं है। प्रॉपर्टी के इश्यूज बहुत सारे आए और खून खराबा भी हो चुका है। इवन इफ दे आर नॉर्मली रिलेटेड, ऑल्सो देर इज फाइट। अगर ऐसा स्टेप फादर स्टेप मदर का केस भी हो, वहां पर भी हम्म। बहुत सारी लड़ाई हो चुकी है। तो ऐसे केसेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? देखिए, पापा का जो प्रॉपर्टी है वो उनके सारे बच्चों में और उनकी बीवियों में समान बटेगा। हिंदू लॉ में तो दो शादी करने का कोई प्रावधान है नहीं एक बीबी के जिंदा रहते हुए। तो अगर कोई एक बीबी नहीं है तो उस वक्त आपका दो शादी है, सेकंड ब्रदर जो है, तो वहाँ पे सोचिए कि पहले बीबी से 3 बच्चे हैं, और पहली बीबी नहीं रही और दूसरी बीबी से 2 बच्चे हैं। तो वो 3 और 2 5 बच्चे, और वो जो बीबी जिंदा है वो 6, वो 6 आदमी होंगे उस प्रॉपर्टी के लीगल क्लेमेंट। जो भी है वो 6 आदमी में बांटना पड़ेगा, ये लॉ है। अब समाज में इस चीज़ के लेके अवेयरनेस नहीं है। लीगल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल अवेयरनेस नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। हर चीज़ को करने के लिए लीगल अवेयरनेस का बहुत ज़रूरत है। तो ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, इसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। इसमें पहला तो है अपब्रिंगिंग, कि आप सोचिए कि हम ऐसे संस्कृति में रहते हैं जहाँ एक भाई वनवास में चला जाए तो 2 भाई बैठ के उसका जूता लेके पहरा देता है कि उनका राज्य को कोई ना ले। और हम ऐसे भी सोसाइटी में हैं जहाँ पे राजा बनने के लिए गला काट के अपने बड़े भाई का तस्तरी में पेश किया जाता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किसको आइडल मानते हैं।
ये सब चीज एकदम शुरुआत से शुरू होता है। माँ बाप का अपब्रिंगिंग, मैं बार बार बोल रही हूँ, अपब्रिंगिंग बहुत बड़ा इशू है। अपब्रिंगिंग सही होगा, एक इंसान के अंदर अगर स्वाभिमान जागेगा तो उसमें लोभ कम होगा। स्वाभिमान ये है कि तुम मेरा एक लोगे तो क्या जाएगा, मैं केपेबल, आई एम केपेबल एनफ, मैं 10 बना लूंगा। अगर ये रहेगा तो इंसान इंसान को मारेगा नहीं। मेरा तो यही अपना व्यू है। जी मैम, जी मैम। मैम अभी आप G20 स्पीकर भी हैं आप, तो यहाँ पर क्या काम होता है? आम जनता को नहीं मालूम G20 स्पीकर क्या होता है, वो समिट क्या है। तो आप यूनाइटेड नेशन से कैसे जुड़े हैं और वहां पर क्या मेजर यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली है, वहाँ पे हम लोग गए थे अपना जो बात है वो रखने। इंडिया के होके गए थे, मैं गई थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे। वहाँ पे हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने ये कहा, इंडिया का हमारा जो अपना व्यू था वो ये था कि पैलेस्टाइन में जो पैलेस्टीन है वो उनके ज़मीन थे, और वो ज़मीन से उन्हें निकाल दिया गया, जैसे हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित हिंदुओं के साथ हुआ है। तो जब उनको निकाल दिया गया, हर जगह से वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के शिकार होते रहे, तो एक टाइम पे आके उनको पता चला कि अभी हमें अपना घर लौटना है। तो उन्होंने आलिया किया, उन्होंने बोला हमें अपना घर लौटना है। और इस चीज़ को हमने बोला कि कैसे हो रहा है, कैसे जब एक देश में कोई एक संख्या बहुल हो जाता है, जो जो संख्या लघिष्ठ है उनके साथ क्या होता है। हर देश इंडिया नहीं होता है कि जहाँ पे जो लोग आपके माइनॉरिटी है वो बढ़ रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है वहाँ पे 33% हिंदू थे, अभी सिर्फ 3% है। पाकिस्तान में 40% हिंदू थे, और 40% हिंदू थे, और अभी हिंदू है ही नहीं। सिख खत्म हो रहे हैं, बार बार उनके लड़कियों का बार बार ये हो रहा है, उनको बार बार ले जाया जा रहा है, उनका धर्मांत जबरन उनका धर्म चेंज किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में ये एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है। रिलीजियस प्रोसिक्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इनको रोकना चाहिए हम सबको। हमारे संविधान भी अपना धर्म पालन करने का, धर्म का प्रचार और प्रसार करने का पावर देता है, और साथ में ये भी बोलता है कि हम लोग किसी भी तरह से अपने धर्म को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। पैलेस्टाइन में ज्यूज को बाहर कर दिया गया था, ज्यूज का लड़ाई है जो शायद हमारे देश में कश्मीरी हिंदू कर लड़ेंगे। है ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा घुसपैठिया है, जो घुसपैठिया की वजह से हमें काम नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे डिप्राइव हो रहे हैं। अगर हम अपने घर में किसी बाहर के आदमी को रहने नहीं दे सकते हैं तो अपने देश में कैसे रहने दें। जो हमारे हैं वो किसी भी धर्म के हो, वो इस देश में रह सकते हैं। यही हमारा बोलना था। और G20 है कि जहाँ पे हम लोग सब अपना जो व्यूज़ है हर टॉपिक के बारे में दे रहे थे। मेरा टॉपिक था लॉ, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि कैसे हम जुडिशियरी को बायस फ्री बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है अभी कि हर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, हाई कोर्ट हो और सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, हर जगह पे आपका CCTV लगाना होगा, मतलब उनका जो है वो टेलीकास्ट करना होगा। हाई कोर्ट का तो होता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं होता है। अभी जो आपको मैंने बताया कि वो 3 दिन में एक रेप के अक्यूज को बेल मिल गया, वो सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं था। जब वहां पे बैठे हुए किसी करप्ट आदमी को पता रहेगा कि मैं करप्शन नहीं कर सकता हूँ, मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मैं आज जो भी बोल रही हूँ आपके यहाँ पे मैं रिकॉर्ड हो रही हूँ, मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बोल रही हूँ, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और नौकरी जाने का डर उसे गलत नहीं करने देगा। तो मेरा सुझाव ये था, मेरा सुझाव ये भी था कि इंटरनेशनल जो मंच है वहाँ पे हमें अपना भाषा, वेनेजुएलन जैसे बोलते हैं, फ्रेंच जैसे बोलते हैं, जर्मनी जैसे बोलते हैं, वैसे दुनिया के सबसे पुराने संस्कृति भारतवासी भी बोले, हम लोग भी अपना भाषा पे बात करें। यही मेरा सुझाव था वहाँ पे। और उसके बाद हमारे PM मोदी जी ने इंटरनेशनल स्टेज में जाके उन्होंने हिंदी में बात किया, और जब मैंने उनसे कहा कि थैंक यू आपने मेरा ये सुझाव लिया मेरे ट्विटर हैंडल से, तो फिर उन्होंने मुझे ये किया, रिप्लाई किया कि कमांडेबल एफर्ट। वो अभी भी वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे देश के, हम ऐसे देश में रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये चीज़ देख रहे हैं कि मेरे जैसे एक साधारण इंसान उन्हें क्या बोल रहा है, और वो उनका जवाब दे रहे हैं। जी मैम, जी मैम, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने उस मंच पर जाके भारत के बारे में और
जस्टिस के बारे में बात करा वहां पर, दैट्स रियली वंडरफुल आपने किया। डियर मैम, अभी हम ये पूछना चाहेंगे, अगर भारत में हर एक स्टेट में, जो भी स्टेट हो, इट्स नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, कोई भी स्टेट में रहे और आपकी बातें सुनकर प्रभावित होकर आपके साथ जुड़ना चाहे, या कोई केस लड़ा, दे वांट टू कम एंड गेट कनेक्टेड विद यू विद एनी केस, मैं हमेशा सबके लिए हूँ। पूरे भारत के कोई भी हाँ जगह हाँ, से? कोई भी जगह से कोई आए, अगर उन्हें लगे कि उनका लड़ाई लड़ने में हमारा कोई योगदान रह सकता है और मैं इतना काबिल हूँ कि उनका जो लड़ाई है वो मैं लड़ सकूं, तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगी, मैं जरूर हूँ। जी जी जी। हम ये नो पूछना मैटर चाहेंगे। कि मेरे सामने कौन है। जी मैंने जी पुलिस के अगेंस्ट में बहुत सारे केस किए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी शत्रु है, लेकिन नो मैटर, मतलब सामने कौन है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना फर्क पड़ता है कि मेरे साथ सिर्फ सच होना चाहिए, जी जी सामने कोई भी हो वो देख लेंगे। जी जी जी। नाउ ये क्वेश्चन ये है, क्या उनका केस दूसरे स्टेट से लड़ाई जा सकती है? अभी आप वेस्ट बंगाल में हैं और महाराष्ट्र में कोई है, तो वो कुछ केस में, महाराष्ट्र में जाके केस लड़ सकते हैं उनका। ओके, सो यू आर रेडी टू टेक। हाँ हाँ हाँ, एडवोकेट कहीं भी जाके केस लड़ सकते हैं। दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली नाइस। सो ये अच्छा इंफॉर्मेशन है हम सब, हमारे सभी भाई बहनों के लिए, दैट्स रियली नाइस। मैम, आप ये सब इस फील्ड में है, लॉ में, और आप अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग इस फील्ड में आते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल वन, बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है, हर 24/7 स्ट्रेस रहता ही रहता। तो आप ये फील्ड में उतर चुके हैं, अपना पूरा टाइम और एनर्जी इसमें स्पेंड कर रहे हैं आप, और इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स भी मिल चुके हैं। तो अभी भी आपका पद्मश्री अवार्डी आप नॉमिनेट हो चुके हैं। तो ये सब अवार्ड्स मिलने के बाद में, नॉमिनेशंस होने के बाद में, आपको कैसा फील हो रही है? हाउ डू यू फील? जिस दिन पहला यहाँ पे आई थी काम करने के लिए, उस दिन पता नहीं पद्मश्री के लिए नाम जाएगा, ऐसा पता नहीं था। आज भी जब गया है तो ऐसा लगता है कि गया है, अगले साल फिर से जाएगा, उसके बाद वाले साल फिर से जाएगा, क्योंकि ये मिलते हैं या तो पॉलिटिकल पर्सन को, या फिर सोचिए 50-60 साल होने के बाद बिना मिलने का चांस तो है नहीं। बस नाम गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो काम है वो तो चलता ही रहेगा। बस काम सही होना चाहिए, नाम तो अपने आप मिल जाएगा। जी जी। Already you have achieved 35 national awards. That's really wonderful and great. तो इतने सारे अवार्ड्स, लाइक हाउ डू यू फील? वो फीलिंग कैसा है कि हाँ मैं सही काम कर रही हूँ, या दिस इज व्हाट? जी ये अवार्ड मिलने पे जितना खुशी होता है, उससे ज़्यादा खुशी मुझे हुआ था जब मैं बस्तर चंदा मेटा में गई थी, जी और वहाँ के असिस्टेंट कमांडर राजू वाघ जी हमारे बहुत सपोर्ट किए। वहाँ पे जाके जब उन लोगों को वहाँ पे जाके मैंने देखा कि वो लोग नाले से पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए उनके पास मतलब ये नहीं है। तो चंदा मेटा में जाके वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक नाला है, नाला से वो लोग पानी पीते हैं। उनके पास बहुत सारे कैटल है, जो उनके वहाँ के जो आदिवासी हैं, पर वो लोग दूध नहीं पीते हैं। तो मैंने बोला, समझाया कि तुम लोग दूध क्यों नहीं पीते हो, क्योंकि सब मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। तो उन लोगों ने कहा, एक बहुत अच्छा बात कहा। तो तब मुझे अपने भारतीय होने पे बहुत गर्व हुआ। कहा कि दीदी, गाय का दूध तो बछड़े के लिए है, वो हम क्यों पिए। और तब जब देखा कि वही इंसानों को पानी नहीं मिल रहा है, अगर मैं कोर्ट में जाती तो मुझे शायद 6 महीना 1 साल लग जाता उनको पानी दिलाने के लिए सरकार से। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने मुझे कहा कि तुम पैसा दे दो। तो वहाँ पे मैंने 1 लाख रुपया डोनेट किया, 6 ग्राम जो गाँव थे वहाँ पे पानी का नल बिठाने के लिए, क्योंकि किसी को पानी पीने के लिए 6 महीना इंतज़ार करवाना मेरे लिए बहुत छोटा था। और उसके बाद जब राजू वाघ जी है जो असिस्टेंट कमांडर है, उन्होंने कहा कि 12 आदमी उसके बाद सरेंडर किए हैं, 12 नक्सलाइट्स। तो सच बताऊं तो सारे नेशनल अवार्ड से ज़्यादा वो एक फ़ोन कॉल इम्पोर्टेंट था कि 12 लोग किसी के समझाने पे, हमारे समझाने पे वो लोग जाके सरेंडर कर दिए। तो ये सबसे बड़ा अवार्ड था, और ये अवार्ड शायद बहुत ही कम इंसान के पास होगा। जी 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 मैम, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। मैम, अभी आप ये फील्ड में है, लॉ में, और अलग अलग लोगों से मिलते हैं, थोड़े लोग अच्छे रहते हैं, थोड़े लोग बहुत
एग्रेसिव रहते हैं और बदले के आग में जलते रहते हैं कि भाई मैम ने इनका केस जितवाया है, इनके साथ खड़े हैं। तो आपके लिए लाइफ थ्रेट ऐसा कुछ कभी आया है? अच्छा, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैं 2 बार मर सकूं? मरना तो एक बार ही होगा। लाइफ है, लाइफ प्रीशियस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रीशियस है आपके आइडियोलॉजी। और मैं ये चीज़ मानती हूँ, अपने सम्मान के आगे अपना जीवन भी नहीं। जी जी थ्रेट है उनके पास। देखिए, जो नहीं जीत पाएंगे वो थ्रेट करेंगे, और उन लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं लेती हूँ सीरियसली, मेरे हस्बैंड भी सीरियसली नहीं लेते हैं। जी जी मैम, अभी काम के अलावा आपको क्या टाइम और वक्त मिलता है ट्रैवलिंग करने में, या थोड़ा मूवीज देखना है, या थोड़ा चिल आउट हो जाने में, या सिर्फ आप काम ही काम पे रहते हैं बार नहीं बार? नहीं, मेरा जब काम खत्म हो जाता है तो मेरे घर के पास में एक सिग्नल है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ हिजड़े हैं, उन लोगों को जाके मैं केक खिलाती हूँ, अड्डा मारती हूँ। बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं जो मुझे पहचानते हैं, आप मेरे साथ कहीं भी जाएंगे तो वो कूदते भागते आएंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बहुत दोस्त है, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। घूमने, ट्रैवलिंग तो हमेशा ही लगा रहता है। हस्बैंड बहुत बिजी है, वो दिन भर पढ़ते हैं, तो अब सोने के टाइम उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ, बाकी तो वो पढ़ाई में ही रहते हैं। जी। हम्म। आप भारत छोड़ के कहीं बाहर फॉरेन टूर के लिए गए अपार्ट फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस? नहीं नहीं नहीं, वो यूनाइटेड नेशन में ही जो गई गई। ऐसे देखिए, हर हर महीने में कहीं ना कहीं जाना होता है, काम के लिए या अवार्ड्स के लिए, सेमिनार के लिए। तो अलग से घूमने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि पूरा दिन तो सेमिनार नहीं होता है, टाइम तो मिलता ही है। कुछ दिन पहले ही गोवा गए थे एक सेमिनार में, तो वहाँ उसके बीच में ही घूम लिए जितना घूमना हुआ। ऐसे ही घूमना होता है, अलग से कुछ नहीं। जी जी मैम, एक बड़ी सवाल अभी, अगर बच्चे जो देखते हैं, आज का युवा पीढ़ी जो ये आपका वीडियो देखेंगे और उनको भी लगेगा कि मैं भी मीता मैम जैसे बनूं, एडवोकेट मीता बनर्जी जैसे बनूं मैं, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, सुझाव? बस इतना ही, अगर पूरा ज़िंदगी अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके सिर्फ सच के लिए लड़ सकते हो, तभी आना, तभी ये फील्ड तुम्हारे लिए है। और अगर तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है तो बहुत सारी जगह है, वहाँ पे जाओ। यहाँ पे मत आओ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आदमी सब कुछ गवा के सिर्फ तुम्हारे ऊपर भरोसा करके आते हैं कि मुझे कोई इंसाफ नहीं दिलाएगा तो ये दिलाएगा, कोई मेरे पास नहीं रहेगा तो मेरी एडवोकेट रहेंगी। अगर ये सोच है तभी आओ, अगर पैसा कमाना है तो कुछ और कर लो। दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है, और अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो तो बुरे इंसान भी मत बनो। हाउ नाइस, इट्स वेरी नाइस। आपकी जो बातें हैं ना, थोड़ा सा बहुत वेरी वेरी स्ट्रांग, एक ही लाइन में आप ऐसा तीर मारना बोल के, इट हिट्स द राइट स्पॉट दैट यू स्पीक सो वेरी वेल। यस, थैंक यू। यस डियर मैम। मैम, अभी समाज के लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी एंड द सेशन डियर? धर्म में रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपका रक्षा करेगा। जी जी मैम, जी मैम, बहुत आप बहुत किसी भी धर्म से हो, क्योंकि धर्म जानने वाले का भी, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था कि जी हर इंसान को अपना धर्म जानना चाहिए, किंतु क्योंकि धर्म आपको अधर्म करने से रोकता है, वो कोई भी धर्म से हो आप। जी और हिंदू बोलते हैं धर्मे रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपका रक्षा करेगा। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू आर अ लवली पर्सन, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपका सोच विचार भी मुझे बहुत नेक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम, थैंक यू। वंदे मातरम। Yes. My dear friends, we come to an end to the International Fab Talks for today. We had a wonderful time, a time to get to know about ma'am. She's an advocate. She's Meeta Banerjee, joining us all the way from Kolkata, West Bengal, India. She has lovely thoughts and views, and she stands for justice, peace, and harmony in the world. I think you people could just get connected with her if you have any of the cases that you'd like ma'am to fight for, to stand for you for the truth and justice. She believes in a fair judgment. She would stand with you. I'd love you to connect with her, bond with her, and see that your case is solved in the right way. Stay safe and stay blessed. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. जय हिंद। Jai Hind. And friends, if you like this video, do share it with one and all. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment to the International Fab Talks if you think we are doing the right thing by creating awareness in the society, by bringing wonderful candidates
and wonderful celebrities on this platform to get to know about their work and how their work could inspire your life or could benefit you in one way or the other. Stay safe and stay blessed. Jai Hind. Jai Hind.